راوی چناب ستلج کی بھپری لہریں شہر کے شہر زیریاب آشیانے اجڑ گئے، موزور موجوں کی زد میں جو آیا ٹھہر نہیں پایا۔ ہر جانب تباہی کے ہولناک مناظر، سیلاب کے ساتھ مصیبتوں اور پریشانیوں کا بھی سیلاب۔ کسی کی جان گئی تو کوئی زندگی بھر کی جمع پونجی سے محروم، ہزاروں افراد کے سر سے سایہ چھن گیا۔ سانسیں بحال رکھنے کے لیے خوراک کی فراہمی بھی بڑا امتحان۔ بھارت نے دریائے راوی میں مزید پانی چھوڑ دیا۔ این ڈی ایم اے کا دریائے راوی میں سیلابی صورتحال کی شدت کا الرٹ جاری۔ سیلابی ریلوں کی آمد کے باعث دریائے راوی کے بہاؤ میں نمایاں اضافہ متوقع۔ دریا کنارے بنی ہاؤسنگ سوسائٹیز، ٹھوکر نیاز بیگ سمیت لاہور کے متعدد علاقے ڈوب گئے۔ سیلابی ریلا آنے پر شہریوں کی دوڑیں لگ گئیں، سینکڑوں گھر خالی کروا لیے۔ شاہدرہ کے مقام پر گندا نالا اوور فلو ہو گیا۔ فرخ آباد اور شفیق آباد مانگا منڈی کے قریب نانو ڈوگر سے بھی درجنوں افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ دریائے راوی سے ٹھوکر تک موٹر وے کے نیچے آنے والی بیشتر آبادیوں میں پانی داخل۔ سہیوال میں دریائے راوی میں اورنگ آباد کے بند میں شگاف پڑ گیا، پانی قریبی آبادیوں میں داخل۔ دریا میں پانی کا بہاؤ اس وقت 1,60,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، جھنگ شہر کو بچانے کے لیے رواس پل کا حفاظتی بند اور ریلوے لائن پر قائم بند پر بھی 3 جگہ شگاف ڈال دیا۔ دریائے چناب کا پانی آبادی میں داخل، پاک فوج کے جوان اور ریسکیو اہلکار ہائی الرٹ۔ جنگ کی تحصیل 18 ہزاری کو خالی کروا لیا گیا۔ چنیوٹ بھی خطرے میں، آج 9 لاکھ کیوسک ریلا گزرے گا، ہزاروں افراد محفوظ مقام پر منتقل۔ گجرات میں دریائے چناب کا سیلابی ریلا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال میں داخل۔ مختلف وارڈز میں پانی جمع ہونے سے ڈاکٹرز اور مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ پنجاب کا آخری گاؤں گنڈا سنگھ والا بھی ڈوب گیا۔ دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، قصور، کھڈیاں خاص، دھوپ سڑی میں سیلابی پانی گھروں میں داخل۔ لوگوں کا سامان کئی فٹ پانی میں ڈوب گیا، لوگ چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور۔ بھاول نگر میں پانی کے تیز بہاؤ سے متعدد ہی عارضی حفاظتی بند ٹوٹ گئے، 90,000 افراد نقل مکانی پر مجبور۔ بہاڑی میں کشتیوں کے ذریعے لوگوں کا انخلاء جاری۔ مہرآباد، ہیڈ اسلام، ڈکھا کالیہ شاہ اور فتح پور سے 1,793 افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ بورے والا کے علاقوں ساہوکا، فاروق آباد، جملیرہ میں بھی ریسکیو ٹیمز سرگرم ہیں۔ فیلڈ مارشل کا پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، سیالکوٹ سیکٹر، شکرگڑھ، ناروبال اور کرتارپور کا فضائی جائزہ لیا۔ سید آسی منیر کو سیلابی صورتحال اور آئندہ بارشوں کے لیے تیاریوں پر بریفنگ۔ سکھ برادری سے ملاقات میں کرتارپور کو ترجیحی بنیادوں پر اصل حالت میں بحال کرنے کا اعلان۔ کہا مذہبی مقامات کا تحفظ ریاست اور اداروں کی ذمہ داری ہے، پاکستان اپنی اس ذمہ داری کو نبھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ فیلڈ مارشل سید آسی منیر نے جوانوں کے حوصلے، تیاری اور خدمات کو سراہا۔ موسمیاتی تبدیلی ایک حقیقت ہے، مؤثر تیاری ہی نقصان سے بچا سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا موسمیاتی تبدیلی اور مانسون کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مؤثر پالیسی کی تیاری کا حکم، تمام صوبوں کو ورکنگ پیپر بھجوانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کا ہنگامی صورتحال سے نکلنے کے بعد اعلیٰ سطحی اجلاس بلانے کا اعلان۔ 4 وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ آبی ذخائر کی تعمیر اور پانی کے مؤثر انتظام کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنائی جا رہی ہے۔ پنجاب میں سیلاب سے 14.5 لاکھ سے زیادہ آبادی متاثر۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ 1800 کے قریب گاؤں زیریاب آ گئے ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار اتنی بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ 3 دریا اکٹھے بپھرے، سیلاب سے اب تک 28 اموات ہو چکی۔ قصور کو بچانے کے لیے موجودہ بند میں سوراخ کرنا پڑا ہے۔ ہیڈ سلیمانکی کے بعد ہیڈ اسلام کا خطرہ درپیش ہوگا۔ پانی جب تک پنجنت میں نہیں جائے گا، خطرہ برقرار رہے گا۔ اکاڑا اور ساہیوال کو دریائے راوی میں سیلاب کے پیش نظر خطرہ ہے، چیلنج کی صورتحال مسلسل بڑھ رہی ہے۔ پنجاب حکومت سیلاب سے جاں بحق افراد کے ورثاء کو 10 لاکھ روپے کی امدادی رقم دے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سمریال کا دورہ، سیلابی پانی سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر آباد کے سیلابی علاقوں میں بھی گئیں۔ بیلا کے قریب تلواڑہ اور سودرا سے ملحق نعیم کالونی بھی پہنچی۔
वज़ीर आला की जानिब से सैलाब मुतासरीन को भरपूर इमदाद फराहम करने की हिदायत। सैलाब मुतासरा ख़ानदान को गले लगाया, तसल्ली दी, कहा कि सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ पहुँचाएंगे। इस वक्त अवलीन तरजीह अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरी इंतज़ामिया और रेस्क्यू करने वाले इदारों से ताउन करें। आपके घरों, फसलों और मवेशियों के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। सबके नुकसानात का इजाला करेंगे। तमाम मुतासरीन का हक उन्हें पहुँचाया जाएगा। ये मरियम नवाज का वादा है। सैलाब से मुतासरा अफराद को इमदाद न मिलने का शिकवा। ज़फरपाल के गाँव दिवाली में कई दुकानें तबाह हो गईं। दुकानदारों का लाखों का नुकसान। इंतजामिया की जानिब से रास्ते ताहाल बहाल नहीं किए जा सके। लोग अपनी मदद आप के तहत रास्ता बनाने लगे हैं। नारोवाल के नवाही इलाकों में भी जगह जगह तबाही के मनासर। कोई रेस्क्यू टीम पहुंची, ना हुकूमती इमदाद। जलालपुर पीरवाला में भी घर छोड़ने वाले सैलाब मुतासरीन बेयार मददगार। हुकूमत से दादरसी की अपील। भी तो 5 मिनट का टाइम नहीं लगा। 10-12 फुट का मतलब ऊपर सी सैलाब। सानू समान कढ़न का भी वक्त नहीं मिला। घर दे विच भी तकरीबन 4-4 फुट पानी है। पानी यकदम सिर ते चढ़िया ते दौड़ लगा के जद बेचारे टोटल अपनी फैमिली असां बचाई है। कोई यानी कि जिली इंतजामिया बंदा यह साडी मदद वास्ते कोई बंदा नहीं इधर आया। गुजरात में घरों में महसूर अफराद को रेस्क्यू करने वाली कश्ती बीच दरिया खराब हो गई। रेस्क्यू एहलकार का अनोखा एहतजाज। गुलकार सजाद अली का गाना डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ गाकर मदद के लिए पुकारा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दरियाई चिनाब का 8 लाख क्यूसी का सैलाबी रैला 2 रोज तक मुल्तान पहुंचने का इम्कान। आबादी को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह बंद तोड़ने पर गौर किया जा रहा है। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम कहते हैं कि आबादी को खतरा हुआ तो हेड मोहम्मद वाला रोड को ब्रीच किया जाएगा। हतमी फैसला टेक्निकल कमेटी करेगी। दरिया के करीब मकीम 1,19,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। डिवीजन भर में 84 रिलीफ कैंप्स का फाल कर दिए हैं। कल रात तक तमाम दरियाई रास्ते खाली करवाने का टारगेट मुकम्मल कर लिया जाएगा। सिंध में 4 और 5 सितंबर को इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। कोट मिठन के मकाम पर दरियाई सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। 10 लाख से जायद क्यूसिक सैलाबी पानी का रैला गुजरने का इम्कान। राजनपुर में ज़िला इंतजामिया की जानिब से कच्चे के इलाकों में मकीम अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के ऐलानात। फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम। लोटिसान के नसीराबाद डिवीजन को भी खतरा लाहक। हाई अलर्ट जारी। जाफराबाद और सोबतपुर के नशीबी इलाके मुतासिर होने का खदशा। सूबाई वज़ीर आपाशी मीर मोहम्मद सादिक खान इमरानी की हिदायत पर फ्लड कंट्रोल सेंटर्स फाल कर दिए गए। सिंध में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। दरिया के किनारों पर 500 से जायद कैंप कायम करने की हिदायत। इजलास में बताया गया कि सैलाबी सूरत हाल के बायस 52,000 से जायद खानदान मुतासिर होने का खदशा है। मुराद अली शाह ने PDME और ज़िला इंतजामिया को मुकम्मल तैयारी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला के सखर से दादू तक बोट्स की साथ रेस्क्यू अमला तैनात करने की हिदायत। सिंध हुकूमत मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार। जामिर हंगामी इकदाम कर लिए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं तमाम बुज़रा मुंतखब नुमाइंदे और ज़िला इंतजामिया अपने अपने इलाकों में अलर्ट रहें। इस वक्त सूरत हाल काबू में है, मगर हुकूमत ने किसी भी हंगामी हालत से निपटने के लिए मुतबादिल मनसूबाबंदी भी तैयार कर रखी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी ने वाज़ेह हिदायत दी है कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह रोज़ाना ब्रीफिंग ले रहे हैं। अवाम को महफूज रखने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। लाहौर में मानसून बारिशों की नवे स्पेल की जोरदार एंट्री। वाल्टन, सदर, नेशनल कॉलोनी, एयरपोर्ट के अतराफ गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। PDMA के मुताबिक 2 सितंबर तक तूफानी बारिशें होंगी। पंजाब में रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलम, गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट में शदीद बारिशें मतवक्के। डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में भी बारिशों का इम्कान। कश्मीर, गिलियात और खैबर पख्तूनख्वा में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पाक फौज अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट लाइन पर। सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, हेड खानकी में रेस्क्यू ऑपरेशन।
मुतासरीन की हेलीकॉप्टर कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिली। उकाड़ा में 423 अफराद को सैलाबी पानी से निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। जवानों ने सरगोदा में कश्तियों के जरिए बच्चों और खवातीन को महफूज मकामात पर पहुंचाया है। कोट मोमिन में सैलाब से मुतासरा 1500 अफराद को रेस्क्यू किया गया। चिन्योट में उम्र के मकाम से 4 खवातीन और 3 बच्चों समेत 20 अफराद को रेस्क्यू किया गया। पाकिस्तान में मानसून की बारिशों और सैलाब से तबाहकारियां। एडीबी सदर का इमदादी कोशिशों में मदद के लिए $30 लाख मदद का ऐलान। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रकम एशिया पैसिफिक डिजास्टर रेजिस्टेंस फंड से दी जाएगी। सदर एशियाई तरक्याती बैंक मिस्टर कांदा ने कहा कि पाकिस्तान तबाहकुन सैलाब का सामना कर रहा है। जब कुदरती आफत आई होती है तो हम फौरी जवाब देते हैं। वज़ारत आबी वसाइल की दस्तावेज में भारत की आबी दहशतगर्दी के सामने सबूत आ गए हैं। भारत खामोशी से डैम बढ़ता रहा, पाकिस्तान के साथ कोई डेटा शेयर नहीं किया। 17 अगस्त को भारत को क्लाउड बर्स्ट का मालूम हो चुका था। 22 अगस्त तक भारत के डैम 87% तक भर चुके थे। भारत ने पाकिस्तान को पहली वार्निंग 26 अगस्त को दी थी। भारत यकम से 22 अगस्त तक कंट्रोल वाटर छोड़ता तो सैलाबी सूरत हाल ना होती। SOPs के मुताबिक डैम को एक हद तक खाली रखना होता है। पंजाब में सैलाब से तबाही, कौन कौन से इलाके जद में आए। 365 न्यूज़ हर उस जगह पहुंचा जहां कोई भी नहीं जा सका। पानी में डूबे मकामात सबसे पहले आवाम को दिखाए। लाहौर, सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल, हाफिजाबाद, वजीराबाद, गुजरात, सियालकोट, हर शहर हर गांव से 365 न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्टिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज दौरा चीन पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि शहबाज शरीफ तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से मुलाकातें तय हैं। पाक चीन ताल्लुकात के कसीरोजहती पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बीजिंग में फौजी परेड में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी ताजरों और कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव से मुलाकातें भी शेड्यूल। पाकिस्तान तेहरान और वाशिंगटन के माबैन सिफारतकारी का रास्ता हमवार करने के लिए तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान और पाकिस्तान सख्त वक्त के दोस्त हैं, लिहाजा एक दूसरे के मसाइल के हल करने में ईमानदारी से पेश आते हैं। अफगानिस्तान से कहा, या तो TTP के खिलाफ कार्रवाई करें या हमारे हवाले करें। इस्लामाबाद में तुर्किया के यौम फतह की तकरीब। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की शिरकत। तुर्क अवाम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात पायदार और बरादराना हैं। ताल्लुकात मजीद वसअत और गहराई इख्तियार करेंगे। तुर्क सिफारत खाने के ज़रिए तमाम तकरीब में सिविल और अस्करी हुकाम, सिफारतकार, सहाफ़ी और ताजिर रहनुमा भी शरीक हुए। हमारा फैसला अटल है, अहम कायमा कमेटियों से इस्तीफे वापस नहीं लेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह बानी चेयरमैन का हुक्म था जिस पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया है। इस्तीफों के मामले पर बात करने का कोई फायदा नहीं।